Hello guys, welcome to the biology class. In this chapter, we will study about the male reproductive system of chapter 3rd, that is human reproduction, class 12th biology. Let us start. मेरे पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, that is male reproductive system. First of all, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. That's why it is an example of organ system. Second thing which should be noted here that male reproductive system में आपको excretory system के बहुत सारे parts का involvement मिलेगा, like penis, urinary bladder. हालांकि इनका कोई direct role नहीं है, but they are involved in the male reproductive system. Let us start. तो जो male reproductive system है human में, इसको दो parts में divide किया गया है. It is divided into primary sex organ and the secondary sex organ. Now the question arises, what is primary sex organ? Primary sex organ उस organ को कहा जाता है which is involved in the production of gamete. मतलब वो organ जिसमें gamete बन रहा है. तो human में, male में जो primary sex organ होते हैं, it is a pair of testes that is oval shaped structure. तो हम कहते हैं कि primary sex organ in male is testis. Why? Because it is the site for the production of gamete. It is also called as gonad. जो reproductive organ होते हैं जहां gamete बनता है उनको gonad भी कहा जाता है. Now the second part is secondary sex organ. Now what are secondary sex organ? Secondary sex organs are those organ जिनका gamete formation में कोई रोल नहीं है, पर इनके secondary रोल है, like ये gamete का nourishment करते हैं, gamete को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, और इनकी एक्टिविटी गैमेट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. Whatever these secondary organ do, their activity is required for the normal functioning of gamete as well as for the transfer of gamete. ऐसा देखा गया है कि अगर secondary sex organ डैमेज हो या नॉन फंक्शनल है तो आपका गैमेट भी काम नहीं कर पाता है. तो secondary sex organ basically involve three different organs or three different parts. First is accessory duct, second is glands, and third is external genitalia. Accessory ducts basically involve, duct मतलब tube. तो ये basically वो tube involve करती हैं which is involved in the transfer of gamete from this testis to the upper part या to the junction above the penis. मतलब ये वो ट्यूब्स हैं जिनका मेन काम है टेस्टिस में से स्पर्म को ट्रांसफर करना और कैरी करना कहां तक, इस जंक्शन वाले पार्ट तक. दीज आर कॉल्ड एज एसेसरी डक्ट्स. अगेन आई एम स्पीकिंग, दीज आर ट्यूब्स. जैसे आप इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझना, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज कंपार्टमेंट्स. अब हर कंपार्टमेंट के अंदर एक ट्यूब है, वो ट्यूब कंपार्टमेंट से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे दूसरी ट्यूब से जुड़ेंगी. मतलब इनका काम क्या है, कंपार्टमेंट के अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म. तो स्पर्म इन ट्यूब्स के थ्रू बाहर आएगा और जिन ट्यूब्स में आएगा दीज आर कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस. तो रेटे टेस्टिस मल्टीपल ट्यूब्स का नेटवर्क है जो किससे जुड़ा है, टेस्टिस के कंपार्टमेंट से. फिर ये रेटे टेस्टिस जुड़ता है आपका वासा एफ्रेंसिया से. ये भी ट्यूब्स हैं. ये ट्यूब्स किससे जुड़ती हैं, एपिडिडाइमिस पोर्शन से. एपिडिडाइमिस एक कॉइल स्ट्रक्चर है जिसका ट्यूब का लेंथ 6 मीटर तक हो सकता है. तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है दैट इज एपिडिडाइमिस. फिर ये एपिडिडाइमिस फाइनली जुड़ेगा आपका वास डिफर्न्स से. तो फाइनली देयर इज अ सिंगल ट्यूब दैट इज अराइजिंग फ्रॉम ईच टेस्टिस विच इज कॉल्ड एज वास डिफर्न्स. तो दीज ऑल द ट्यूब्स, रेटे टेस्टिस, vasa efferentia, epididymis, and finally vas deferens, these all are collectively called as accessory duct. इनके कुछ फंक्शन हैं which we will discuss in detail. Now second is accessory glands. Now what are glands? Glands are unicellular और multicellular structure जिनके अंदर कुछ केमिकल स्टोर होता है और जब भी जरूरत पड़ेगी वो केमिकल रिलीज होगा. सिमिलरली मेल स्पर्म की फंक्शनिंग के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं एंड दीज केमिकल्स आर बेसिकली रिलीज फ्रॉम 3 ग्लैंड्स. The first one is this seminal vesicle
The second gland is prostate gland and the third is bulbourethral gland. ऐसा देखा गया है कि अगर इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन नहीं होता है तो मेल गैमेट दैट इज स्पर्म भी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है. द थर्ड पोर्शन हियर इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो सेक्स ऑर्गन है जो गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करने का काम करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज पेनिस और इसमें एक ट्यूब प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा. सो अब यहां पे 2-3 चीजें और मेंशन करता हूं. यहां से वास डिफरेंस आपका स्पर्म को ले गया इस जंक्शन पे. जैसे ही यहां पे पहुंचेगा तो सेमिनल वेसिकल से भी एक लिक्विड सीक्रेट होता है. तो जहां पे सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस की ट्यूब मिलती हैं उसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट. इट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट. जैसे कि नाम से समझिए इजैकुलेशन मींस रिलीज ऑफ समथिंग और यहां पे क्या रिलीज हो रहा है, मेल गैमेट रिलीज हो रहा है. इस इजैकुलेटरी डक्ट के आप इसके पीछे स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना. ये जो 2 ट्यूब्स हैं दीज आर यूरेटर और यूरेटर का काम क्या है, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्पर्म है और यूरिन है वो एक कॉमन ट्यूब से डिस्चार्ज होता है. तो यहां पे इस पोर्शन के आगे जहां भी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा और इस यूरेथ्रा के इस पोर्शन को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है. यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि ये यूरिन के भी ट्रांसफर में हेल्प करता है या डिस्चार्ज में हेल्प करता है एज वेल एज इट हेल्प्स इन द डिस्चार्ज ऑफ द स्पर्म. अगेन आई एम स्पीकिंग इन मेल देयर इज अ कॉमन डक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एज वेल एज यूरिन जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज एन idea about the human reproductive system. That is all for today. इसके अगले वीडियो में we will study about the primary sex organ. So please go through it, understand what are primary and secondary sex organs, and that is all for today. In case if you have any doubt, just let me know. Thank you.